নমস্কার। আজকে আমাদের ঈশানের অতিথি অনুষ্ঠানে এসেছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে আপনারা চেনেন এবং যাকে আপনারা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখেছেন। তিনি একজন বরাক উপত্যকার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং একই সঙ্গে সমাজসেবার সঙ্গে তিনি যুক্ত এবং বিশেষ করে হিন্দিভাষী বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তার যে জীবন দর্শন এবং তার যে দিকনির্দেশ সেটা একটু অন্যদের সঙ্গে একটু আলাদা। তাই ঈশানের আজকের অতিথি অনুষ্ঠানে আমরা তাকে এখানে স্বাগত জানিয়েছি। आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। তার নাম ডক্টর রঞ্জন সিং। রঞ্জন সিংয়ের পরিচয় হলো তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, আমি আগেই বলেছি, এবং তিনি শিলচরের একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। এর আগে তিনি সরকারি চিকিৎসা সেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি বেসরকারি চিকিৎসা সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। শিলচরে এখন তার একটি নার্সিংহোম রয়েছে, সেটার নামটা কি? আরি নার্সিংহোম, বিখ্যাত নার্সিংহোম, সেটা শিলচর মেডিকেল কলেজের উল্টো দিকে। তো আমরা আজকে তাকে এনেছি। আমরা তাকে আনার উদ্দেশ্যটা হলো যে আমরা বরাক উপত্যকার সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এবং হিন্দিভাষীদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এবং হিন্দিভাষী নেতৃত্বে যে একটা সংকট আমরা লক্ষ্য করছি গত কয়েক বছর থেকে, সেই সম্পর্কে তিনি কি ভাবছেন এবং হিন্দিভাষীর সঙ্গে বৃহত্তর বাংলাভাষীদের ঐক্য এবং অন্যান্য ভাষাভাষীদের যে একটা ঐক্যের যুগসূত্রে বেঁধে নেওয়ার যে কাজটা তিনি ওতপ্রোতভাবে আন্তরিকভাবে করতে চাইছেন, সেটা আমরা তার বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হতে দেখেছি। তো আপনার কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্নটা হলো, आपका पिताजी एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे, तो आप बिजनेस के लाइन छोड़ के आप क्यों ये लाइन चूज़ किया है, डॉक्टर के लाइन? इसका कारण क्या है? धन्यवाद। जब मैं बचपन में पिताजी के साथ डॉक्टर के पास जाता, पिताजी अक्सर बीमार रहते थे, तो उस समय मेरे मन में एक भावना आती थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है और मैं लोगों का सेवा कर सकूं। और इसके साथ भी पिताजी ने, जब मैं क्लास 4 में था, तो पिताजी ने पूछा कि तुम क्या बनेगा, तो मैं बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो पिताजी ने दोबारा जब पूछा तो मैंने बोला कि मैं एक बार आपको बोला तो हो गया, मैं बनूंगा। तो फिर मैट्रिक के पहले पिताजी का देहांत हो गया, एग्ज़ाम के जस्ट पहले। तो मेरा और एक, आपके पिता कहाँ का रहने वाला थे? मेरा पिताजी तो मूल निवासी हम लोग बिहार के, लेकिन हम लोग करीमगंज में पूरे सेटल्ड हैं, वेल सेटल। मेरा दादाजी भी और दादाजी भी से भी हम लोग करीमगंज में रह रहे हैं, सिलचर में रह रहे हैं। उस समय तो कछार डिस्ट्रिक्ट था, अभी तो करीमगंज हो गया। तो हम लोग वहीं के हैं, अभी मूल निवासी हम लोग यहीं के हो गए, असम के ही। तो उसी टाइम से ही आपका चॉइस था कि आप एक डॉक्टर बने? हाँ, बचपन से ही था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। देखा जाता है कि आप बहुत सारे सोशल संगठन से रिलेटेड है, इसका कारण क्या है? डॉक्टर होने से आपको ऐसा हो सकता है कि आप पेशेंट देख रहे हैं, अच्छा चल रहा है, तो क्यों वो सोशल एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को? बचपन से मेरा लोगों से बहुत लगाव है, मैं कभी अकेला रहता नहीं, मैं समाज से जुड़ा रहना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ करूँगा, मेरा अंदर से भी कुछ बोलता है कि तुम कर सकते हो, करो, आगे बढ़ो। और जब मैं कुछ कमा रहा हूँ समाज के लिए, तो समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ मेरे कमाई का हिस्सा में समाजों के बीच में कुछ खर्चा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे शांति मिलती है, ये मेरी इच्छा है। তো আপনারা দেখলেন যে ডাক্তার রঞ্জন সিং বলছেন যে ছোটোবেলা থেকে তার ইচ্ছে ছিল তিনি একজন ডাক্তার হবেন, কারণ তার বাবা অনেক সময় অসুস্থ থাকতেন। অসুস্থ বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে যেতে এই ছোট্ট শিশুর মনে ইচ্ছে জেগেছিল একদিন ডাক্তার হবেন এবং সেই ইচ্ছাকে তিনি বাস্তবায়িত করেছেন। এটার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর সামাজিক কাজকর্ম তিনি এই জন্যই করেন, মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী, সেই ধারণা থেকেই তিনি মানুষের সঙ্গে মেশেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসেন, মানুষের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসেন। এবং ডাক্তার আমরা সাধারণত দেখেছি মানুষ যখন একটা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের যে একটা যোগসূত্র, সেই যোগসূত্রটা যেন কোথায় ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তার রঞ্জন সিংয়ের সঙ্গে আমরা দেখছি একটা অন্য চিত্র। তিনি আরও বেশি করে ডাক্তার হওয়ার পর যেন মানুষের সঙ্গে আরও বেশি করে মিশছেন। এটার জন্য আপনাকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার ডাক্তারি জীবন সম্বন্ধে প্রথমে আমাদের দর্শকদের একটু আপনি বুঝিয়ে বলুন, কোন জায়গা থেকে আপনি শুরু করেছেন ডাক্তারি, আজকে কোন জায়গায় এসে পৌঁছেছেন? সর্বপ্রথম আমি মেডিকেল কলেজ থেকে যখন বাইরে হইলাম, আমি সর্বপ্রথম কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে NPGR ছিলাম। তারপরে আমি দোয়ালিয়া স্টেট ডিসপেন্সারি আন্ডারে স্টেট হেলথ আন্ডারে কাজ করছি, দোয়ালিয়া ডিসপেন্সারি।
ওখানে অনেক দিন কাজ করছি, আমার ভালো লাগছে। তারপরে আমি একটা ডিপ্লোমা ট্রেনিং লিছি অ্যানেস্থেসিয়ামে, এটা এনআরএচ মান্ডারে। তারপরে আমার ট্রান্সফার হয়ে গেছে करीबगंज सिविल हॉस्पिटल। ওখানে অনেক দিন কাজ করার পরে আমার अंदर सब समय लगता कि আমি কিছু নিজে कुछ করি না। তো এট দ্যাট টাইম মিনস 12-15 বছর হয়ে গেছিলো। তো আমার ইচ্ছা হয় কি আমি कुछ এরকম কাজ যে কি লোক কিছু চাকরি দিতে পারবো আমি, এই চিন্তা ভাবনা আমার আগে থাকি আসলো। ওই জন্য কি কিছু লোকরে আমি এঙ্গেজ করব। রাইট টাইম ওখানে আমার আন্ডারে 17 ওয়ার্কার আছে ইন নার্সিং হোমে। মানে 70টি পরিবারকে আপনি বা আপনার হ্যাঁ, তারা আমার লগে জড়িত আছে 70 মেম্বার্স। আর ভবিষ্যতে আর হইব, এটা নিয়ার অ্যাবাউট 150 যাইব। কি দুর্গা পূজা পর্যন্ত আমি আইসিইউ স্টার্ট করতেছি আর ডায়ালাইসিস, এই জন্য আমার অনেক স্টাফ লাগবে। आप कब स्टार्ट करेंगे आईसीयू? इस साल के अंत तक स्टार्ट कर दूंगा, आईसीयू डायलाइसिस स्टार्ट कर दूंगा। আচ্ছা, আপনারা শুনলেন তার ডাক্তারের যে প্রফেশনের যে জায়গাটার কথা। তো এবার আমরা একটা প্রশ্নটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছি। সেটা হলো একজন লোক তার যদি নিজের ভাষাকে ভালো না বাসতে পারে তাহলে সে অন্যের ভাষাকেও ভালোবাসতে পারে না। এটা একটা এ কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছিলেন। একজন মানুষ যদি তার মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান। একজন লোক যদি তার মাতৃভাষাকে ভালো না বাসতে পারে সে অন্যের মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে পারবে না। যে নিজের মাকে ভালোবাসতে পারে না সে অন্যের মাকে ভালোবাসতে পারে না। সেই জায়গা থেকে আমরা দেখেছি বিভিন্ন হিন্দিভাষী সংগঠনের সঙ্গে রঞ্জন সিং যুক্ত। रंजन सिंह का हमारा एक सोजासुजी प्रश्न, आपको हिंदी भाषियों का करीब 30 संगठन है, इसका कारण क्या? एक संगठन क्या नहीं हो सकता? इसका कारण क्या? आपके विचार से क्या कारण हो सकता है इसका? हम लोग में ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा है, हर कोई चाहता है कि मैं लीडर रहूं। तो धन्यवाद आपका सुझाव के लिए। कुछ दिन पहले हमारा माननीय विधायक श्री कौशिक राय जी ने कहा था कि आप लोग, उस समय हमारे अभिभावक मंत्री श्री अशोक सिंघल जी गए थे, तो उन्होंने कहा कि बराक हिंदी साहित्य समिति में हम लोग का एक उन लोग को मीटिंग हुआ था जिसमें उनको हम लोगों ने सम्मानित किया था, हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्री कौशिक राय जी एवं अशोक सिंघल जी माननीय मंत्री। तो उस समय मंत्री जी ने भी कहा था कि आप लोग क्यों नहीं एक मंच पर आए। तो उन्हीं का आगे से भी हम लोग का एक सोच आता था, लेकिन उनके करने से और हम लोग ने उत्साहित होकर के, आपको जानकर खुशी हुई कि पिछले 10 दिनों के भीतर हमने 2 मीटिंग कराया हम लोग ने, और सभी संगठन एक साथ बैठ करके मीटिंग हुई और हम लोग एक संयुक्त रूप से एक कमेटी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अच्छा बात है। तो हिंदी भाषियों को सभी संगठन एक साथ मिलाकर चलने के लिए आप मीटिंग किया है ना, इसी बात है। तो वो कब तक में हम लोग देख सकता हूँ कि एक ही संगठन है हिंदी भाषियों का? ये हम लोग कब देख सकते हैं? अगले 1 महीने तक हो जाएगा ये चीज़। इसमें हमारे विधायक भी बहुत लगे हुए हैं, विधायक लखीपुर विधायक। एक बात हर जगह में कही जा रहा है ये कि आप तो सोशल एक्टिविटीज़ में है तो ठीक है, लेकिन आपको किसी ने डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं देखा है। तो ये भी बात हो रहा है इधर कि आप शायद पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा हूँ, लेकिन भविष्य में देखा जाएगा, मौका आएगा तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। আপনারা শুনলেন ডক্টর রঞ্জন সিংয়ের কথা। তিনি এই মুহূর্তে সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত। আমাদের প্রশ্নটা ছিল যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছি এবং অনেকেই তার সমর্থক বা যারা তার সঙ্গে তার সান্নিধ্যে আছেন তারা বলছেন যে তিনি হয়তো রাজনীতিতে আসতে পারেন। তো সেই কথাটাই আমরা আজকে কিশোরমালা স্টুডিওতে তিনি প্রথমবারের মতো সরাসরি বললেন যে যদি সেরকম কোনো সুযোগ আসে অবশ্যই তিনি সেটা ভেবে দেখবেন। সরাসরি বলছেন না, কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি রাজনীতিতে আসার একটা সুপ্ত ইচ্ছা তার ভেতরে কাজ করছে। অনেক ধন্যবাদ, আপনি আসুন। একটা প্রশ্ন আপনাকে সরাসরি করছি, সেটা হলো যে হিন্দিভাষীদের যে বড় নেতা হিসাবে গত 3 দশক থেকে দাপিয়ে বেরিয়েছেন দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা। 2014 সালে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা প্রয়াত হন। তো আপনি কি মনে করেন, এবং দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা প্রয়াত হওয়ার পরে হিন্দিভাষীদের একটা নেতৃত্বের একটা সংকট দেখা দিয়েছে? इफ देयर एक वैकुअम देखा दिया है जो हिंदी भाषियों के जो नेतृत्व के बारे में, ये क्या आप सोचते हैं कि उसको उनका देहांत के बाद? सर्वप्रथम तो मैं स्वर्गीय श्री दिनेश प्रसाद जी को मैं नमस्कार देता हूँ, मेरा प्रणाम है। वो एक डायनामिक फिगर थे, बहुत ही जीनियस थे और हाईली क्वालिफाइड थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और
सिर्फ एक ही समाज से वो नहीं थे, वो हर समाज के से जुड़े थे, हर लोग उनको मानते थे। तो वैक्यूम तो ज़रूर है, लेकिन अभी उसको भरपाई करने के लिए समय लगेगा। हम लोग कुछ देख रहे हैं कि हमारे नए निर्वाचित विधायक श्री कौशिक राय जी इस लाइन में आ सकते हैं। अब उनसे हाँ, बहुत उनका उम्मीद किए संभावना हुए है। हैं, उनसे बहुत उम्मीद भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उनसे कंपेयर तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत दिन तक सेवा किया है और लोगों से जुड़े रहे भी हैं। फिर भी हम लोग आशा करते हैं कि हमारे माननीय विधायक इस तरह के काम में आगे बढ़ते रहेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि कौशिक राय के कई इस तरह की संभावना है, वो भी आगे से दिनेश गोला बन सकता है? मुझे उनमें आशा दिखाई दे रहा है, लग रहा है, लक्षण लग रहा है कि वो बहुत दूर तक जाएगी, ऊंचाई छुएंगे। ডক্টর রঞ্জন সিংয়ের মতে যে আমরাতে এবং হিন্দিভাষীর যে দিনেশ গোলার মৃত্যুর পর একটা হিন্দিভাষী নেতৃত্বে একটা শূন্যতা এসেছে, কিন্তু সেই শূন্যতা ভরাট করতে হলে মতো নেতা এখনও আছেন, তবে একটু সময় লাগবে। এবং সেক্ষেত্রে তিনি কৌশিক লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায়কে কিছুটা এগিয়ে রাখতে চান, এটাই তো আপনার বক্তব্য। হিন্দিভাষীদের একটা ইদানিং একটা খুব আসামের হিন্দিভাষীদের একটা বড় দাবি হলো যে এপিএসসি পরীক্ষায় অসমিয়ার সঙ্গে বড়াক উপত্যকায় বাংলা এবং বড় এলাকায় বড়, এই তিনটা ভাষায় एपीएससी परीक्षा देवा जाए। तो हिंदी भाषियों का एक डिमांड है कि हमारा लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड कीजिए, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी बहुत से ज़्यादा हिंदी पॉपुलेशन है आसाम में, तो हिंदी को भी इंक्लूड किया जाए। इसलिए आप लोगों ने कुछ डेपुटेशन भी दिया है, लेकिन उसके बाद आपका आंदोलन में उतना तेज़ नहीं है। इसका कारण क्या है? क्या हो गया? आपका दावी मान लिया गया है क्या? हिंदी के इंक्लूजन के लिए हम लोग आशावान हैं कि मान लिया जाएगा, क्या कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिश्व शर्मा ने आश्वासन दिया है कि हम लोग ठीक कर देंगे। प्लस हमारे विधायक श्री कौशिक राय जी एवं भूतपूर्व विधायक श्री राजदीप ग्वाला जी ने भी हम लोग को आश्वासन दिया है। प्लस हमारे कुछ संगठन के नेताओं को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा से भी मिले थे पिछले दिनों, और अभी वो लोग अभी एक के टाइम फिक्स होने के बाद क्या मिले थे? सीएम होने के बाद वो लोग टाइम एक फिक्स करना चाहते हैं, और कई संगठनों को लेकर के उनसे साक्षात करके यह मुद्दा रखेंगे। अब वर्बली सीएम ने भी आश्वासन दिया है कि हिंदी को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आपका ख्याल से हो सकता है ये? जी। अपनी जो विभिन्न राजनैतिक कांडे अपनी सरासरि जड़ित नन, किन्तु हबेन बा सामाजिक এইগুলোর পেছনে আপনার মূল লক্ষ্যটা কি? আপনি কি বরাকের উপত্যকার সবার স্বার্থ দেখছেন, না শুধু হিন্দিভাষীর স্বার্থ দেখছেন বা ডাক্তার সমাজের স্বার্থ দেখছেন, এরকম কিছু না? আপনি সার্বিকভাবে সমাজ? আমার कोई पर्सनल मानुष नहीं, আমি सब लगे मिलिया चलते चाहते, मेरा सबसे मिल के रहा, मेरा नेचर स्वभाव भी है, मुझे किसी में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ का हवा पीता हूँ, यहाँ का पानी पीता हूँ, मैं सबके साथ करूँ। अब मुझे कोई यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए, ये ऐसा मेरा सोच है। मैं किसी एक ग्रुप के लिए आइडेंटिफाई होकर नहीं रहना चाहता, मैं सबसे मिल मिस करके सब लोगों में बीच में मिल के रहना चाहता हूँ। एक आइडेंटिफाई नहीं होना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हिंदी स्पीकिंग के लिए। हाँ ठीक। अच्छा, बराक उपत्यकार एक भूभाषिक वैशिष्ट्य, दैट मीन्स मल्टी लिंग्विस्टिक कैरेक्टर है बराक वैली का। यहाँ बंगाली भी है, मणिपुरी भी है, डिमासा है, हिंदी भाषी है, बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे है। तो ये सब डेवलप्ड हो रहा है। तो इस जो हमारा जो बराक घाटी का जो मल्टी कल्चरल भूभाषिक संस्कृति जिसका कहते हैं, इसके विकास में आपका क्या योगदान होगा? ऐसे भी मैं सब चीज़ बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं रहता हूँ, जब भी कोई मुझे बोलते हैं तो मेरे तरफ से जो भी होता हूँ मैं तत्पर रहता हूँ करने के लिए। छोटा से लेकर के बड़ा तक मैं रहता हूँ उस पर, और आगे भी आशा करता हूँ कि मैं ईश्वर की कृपा से इन सब चीज़ में लगा रहूँगा। আচ্ছা, এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনাকে করতে যাচ্ছি, সেটা কিছুটা স্পর্শকাতরও বটে। স্বাধীনতার পর থেকে গত 70 বছরে আমরা দেখেছি যে বরাক উপত্যকার যতগুলো ভাষাভাষী গোষ্ঠী আছে, যেমন সব গোষ্ঠী কিছু না কিছু উন্নতি করেছে তাদের চাকরির ক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু हिंदीभाषी समाज एक बृहत्तर जनगोष्ठी हुआ सत्त्वेও, लार्ज पॉपुलेशन होने के बाद भी उतना एडवांस नहीं हुआ है। जिस तरह आप देखिए, छोटा छोटा कम्युनिटी भी, मणिपुरी भी एडवांस हो गया है, विष्णुप्रिया मणिपुरी भी एडवांस हो गया, छोटा कम्युनिटी है ये लोग, मार भी छोटा कम्युनिटी है। लेकिन हिंदी भाषी क्यों उतना जितना होना चाहिए था उतना क्यों नहीं हो पाया? इसका कारण क्या है?
इसका मूल कारण है शिक्षा। शिक्षा में हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शिक्षा का सुविधा भी कम है। और दूसरी है कि स्टूडियो में मुझे बोलना चाहिए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, नशाबंदी होना चाहिए। यही सबसे मूल कारण है जो पीछे ले जा रहा है। तेज तर्रार लड़का लोग भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक लेवल तक जाके उसके बाद नहीं जा पाते हैं। और अभी का जो सरकार है जिस तरह से स्कूल का ध्यान दे रही है, रास्ता का, बिजली का, तो हमें लगता है कि कमिंग 10 ईयर्स में ये लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका ख्याल से पॉपुलेशन ज़्यादा होना और शिक्षा का कारण है इसका? अशिक्षा। अशिक्षा। तो इसके दूर करने के लिए आपका कोई सुझाव है क्या? अभी जो स्कूल तो है, लेकिन क्यों स्कूल में नहीं जा रहा है, ये तो एक बात है ना। इसके लिए जैसे हम लोग का कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो लोग भी मोटिवेट कर रहा है कि तुम्हें स्कूल में जाना चाहिए, और सरकार की तरफ से जो कुछ मिल रहा है, स्कूल जाने से कपड़ा, साइकिल मिलता है, खाना मिलता है, तो इससे भी बहुत बच्चे लोग प्रेरित हुए हैं। अभी मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम लड़के ही होंगे जो स्कूल नहीं जाते हुए। आई थिंक कि गांव में 1-2 होंगे, अदरवाइज सभी बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। हम लोग ने देखा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदी भाषी में एक बहुत सारे संख्या में है टी गार्डन पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखा है कि अगले 5 आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा है कि द्वारिका प्रसाद तिवारी से लेके जगन्नाथ सिंह, देश प्रसाद ग्वाला, कृपानाथ माला, बहुत सारे लीडर, गौरीशंकर राय, बहुत सारे लीडर टी गार्डन कम्युनिटी से आए हैं, उनका वोटों से जीते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है टी गार्डन में। यह भी एक इसका कारण क्या है? इतना लीडर है कि कम्युनिटी में, सर बंगाली में भी नहीं हुआ है इतना लीडर। डेवलप तो हुआ है, लेकिन मुस्लिम में भी नहीं हुआ है इतना लीडर, लेकिन क्यों हिंदी भाषी में? डेवलप तो हुआ है ना, तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जितना अप टू मार्क नहीं हुआ, जहाँ तक होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और आई थिंक एक और मेजर प्रॉब्लम रहा होगा, देश स्वाधीन के बाद तो देश गरीब था, उतना रिसोर्सेस भी नहीं था, फंड भी नहीं था। और कांग्रेस सरकार का एक बात था कि जो स्टेट उसको ज़्यादा वोट देता था वहाँ पर कुछ फंड नहीं देता था, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, ये डिप्राइव होता था। तो अब उसके बाद अब जो है, जब निगेटिव वोटिंग हुआ तो ज़्यादा आ रहा है, फंड आ रहा है, हर चीज़ हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं किए, लेकिन उन लोगों को कुछ और ज़्यादा करना चाहिए था। नहीं, बात तो यही, तो क्वेश्चन तो यहाँ से आ रहा है ना जी, इतना लीडर रहने के बाद तो अभी सुना होना चाहिए था इस पर। जी, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ। आप तो सरकारी नौकरी में थे पहले, तो आप क्यों छोड़ दिया? इतना अच्छा तनख्वाह मिल रहा था, अभी भी आप रहने से आपको अभी भी महीना में 1.5-2 लाख मिलना अभी, लेकिन आप क्यों छोड़ दिया? इसके पीछे क्या? सर्विस से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो 10-15 साल सर्विस करने के बाद मैं सोचा कि मैं कुछ अपना करूं जो लोगों को लगा सकूं और अपने मन के हिसाब से चल सकूं। उसमें एक बाइंडिंग्स के नहीं चलना पड़ता था। तो इसमें जो है, मैं जो लोगों को नौकरी दे सकता था अपना मन से, वो नहीं कर सकता था। और नौकरी के बाद मैं सोशल सर्विस उतना समय नहीं दे पाता जो कि इसमें मैं दे पा रहा हूँ, ये भी एक कारण है। अच्छा, मतलब सोशल परफॉर्मेंस करने के लिए और आपने खुद कुछ करने के लिए अपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप प्राइवेट में आए हैं। अच्छा, बुराक भिरी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपका कोई स्पेसिफिक कोई प्लानिंग है क्या आपके मन में? मन में है कि यहाँ पर कुछ उद्योग लगाया जाए, बाहरी लोग को इंस्पायर किया जाए कि यहाँ पर आकर के उद्योग लगाए। क्या कि यहाँ पर रिसोर्सेस बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेस भरा पड़ा हुआ है जो कहीं नहीं है। यहाँ इजीली खेती भी होता है, क्या कि यहाँ पानी बहुत अच्छा है, क्लाइमेट है, वर्षा बार हमेशा होते रहती है, जलवायु भी अच्छा है। तो सरकार अगर प्रोत्साहन करे तो यहाँ पर डेवलपमेंट में उतना दिक्कत नहीं होगी। और उद्योग का भी बहुत स्कोप है, जैसे अनानास है, ये सब, चाहे टी क्रॉप है, ये सब तो है ही यहाँ पर भरा पड़ा। और एक क्वेश्चन है आपके लिए। তো আপনারা শুনলেন ডক্টর রঞ্জন সিংয়ের তার নিজস্ব কিছু চিন্তা আছে এবং তিনি বলেছেন যে বরাক উপত্যকায় যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেটার উপরে নির্ভর করে এখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব, সেটা তার ধারণা এবং সে সম্পর্কে তার কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও আছে। এবং তিনি আরও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, সেটা হলো যে উনি একজন সরকারি চাকরিজীবী ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এবং ছেড়ে দিয়ে কিছু একটা করার জন্য এবং সামাজিক কাজে সরকারি চাকরি করা থেকে সামাজিক কাজ করতে কিছু বাস্তব অসুবিধা মুখে পড়তে হয় সেটা অনুধাবন করে তিনি তার যে ব্যক্তিগত যেগুলো চিকিৎসা সেবা সেটা তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন
এবং তিনি যে নার্সিংহোম খুলেছেন সেখানে 70 জনের মতো পরিবার আছে, সেটা তার উপর তার নার্সিংহোমের উপর নির্ভরশীল। এবং তিনি যেটা বললেন আমাদের যে তিনি আগামীতে সুযোগ পেলে এবং সেই রকম ধরনের পেলে তিনি রাজনীতিতে আসতে ইচ্ছুক। এবং তিনি আজকের একটা সোজাসুজি ভাষায় বলেছেন এবং যেটা কোনো ধরনের এবং হিন্দিভাষী সংগঠনকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং হিন্দিভাষী সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চান যে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দিভাষীদের একটা সংযোগ থাকুক, সবাই একসাথে মিলে বরাকের সার্বিক উন্নয়ন। এবং তিনি চান না যে কোনো একটা পার্টিকুলার বিশেষ একটি ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি তিনি হয়ে থাকতে চান না, তিনি সবার প্রতিনিধি হয়ে থাকতে চান। তো ডক্টর সিং, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আমরা করছি, আপনি কি মনে করেন যে বরাক উপত্যকার এখন যে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, ইজ ইট সাফিशिएंट? अभी पहले नहीं, लेकिन इस कोरोना काल के दौरान जो हमारे SMCH का जो है कंडीशन प्लस बराक वैली में वो काफ़ी उन्नत हुआ है। अभी हमारा इसमें डिफिशियंसी नहीं है, अभी बहुत ही बेहतर सुविधा हुआ है। पिछले कोरोना के टाइम में जो यहाँ पर लोगों ने खुद से पेशेंट का जो चिकित्सा हुआ है, सच में रियली ये उच्च कोटि का था। पूरे देश में इस तरह का व्यवस्था कहीं नहीं था जो कि हम लोग का बराक वैली में था। ऐसा ही है, करता हूँ कि और भी डेवलप होगा। अभी हमारा स्वास्थ्य सेवा ठीक है ना। एक बात तो आपको मानना होगी, जैसे सारा भारत में जहाँ ऑक्सीजन का कमी हो रहा था वहाँ हमारा यह नहीं हुआ है। इसके लिए हम हमारे माननीय मंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी जब हेल्थ मिनिस्टर थे उनको मैं क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने बहुत तत्पर होकर काम किया है, डायनामिक पर्सनालिटी के हिसाब से काम किया है। आप कोई मैसेज देंगे कि न्यू जनरेशन को जो डॉक्टर होना चाहता है उसको कोई आप मैसेज देंगे? डॉक्टर होना चाहिए, समाज सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम बहुत हर घर में ज़रूरी है। और डॉक्टर का संख्या भी बहुत कम है, हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके रेशियो में डॉक्टर बहुत कम है। इसलिए मैं बोलूँगा कि उन लोगों को आगे आकर के डॉक्टर होना चाहिए। তো আমরা শুনলাম ডাক্তার রঞ্জন সিং কীভাবে তিনি চাইছেন সমাজে উন্নতি করতে এবং তার নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনার কথা তিনি আমাদের বললেন। এবং ডাক্তারি পড়াটা উচিত এই বার্তা তিনি দিতে চান নতুন প্রজন্মকে, কারণ আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা অত্যন্ত কম, তাই ডাক্তারি পড়ার জন্য। लेकिन एक बात है, अभी देखा जा रहा है कि मैक्सिमम डॉक्टर, सब नहीं, और डॉक्टरी प्रोफेशन से ज़्यादा बिजनेसमैन बन रहा है। कुछ तो हकीकत है, लेकिन सब लोग नहीं है। लेकिन अभी जो कोरोना के टाइम में जो आया है ये बहुत चेंजेस आया है। मैक्सिमम डॉक्टर लोग इस तरह की चीज़ में लिप्त नहीं है, सेवा भावना से ही काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ नर्सिंग होम में देखा जा रहा है कि कोविड का बिल 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी लिया गया है। जी, अभी तो नहीं हो रहा है। अभी जब सरकार जब से इंस्ट्रक्शन दी है कि हमें ये बिल लेना है, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है उसी के हिसाब से बिल बनाया जा रहा है। তো আজকের অনুষ্ঠানে আমরা ডক্টর রঞ্জন সিং কাছে শুনলাম অনেকগুলো তথ্য এবং আরেকটি জানতে পারলাম যে হিন্দিভাষীদের সবগুলো সংগঠনকে একই ছাতার তলায় আনার একটা চেষ্টা চলছে এবং সেই চেষ্টায় তিনি একটা বড় ভূমিকা পালন করছেন, এটা তার কাছ থেকে জানলাম। এবং সেটা বরাকের জন্য একটা অত্যন্ত সুখবর, কারণ আমরা চাই প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব সংগঠনগুলো জোরদার হোক এবং সংগঠনের সংখ্যা কম হওয়া ভালো। একই সংগঠনের একটি সংগঠনের হয়ে কাজ করলে সেটা কি হয়, একটা নিয়ন্ত্রণ থাকে একটি জাতিগোষ্ঠীর উপর, না হলে কোনো নিয়ন্ত্রণহীন একটা জাতি কোনোদিন উন্নতি করতে পারে না। এবং আপনারা দেখবেন যেসব জাতিগোষ্ঠী উন্নতি করেছে তাদের সংগঠনের সংখ্যা কিন্তু কম। তো আমরা একজন ডাক্তার হওয়ার পরেও আমরা দেখলাম ডক্টর সিং চাইছেন সমাজের জন্য কিছু একটা করতে। আর আজকে আমরা ঈশান বাংলার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। নমস্কার।